कौन कहता है कि नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथ ही घर चलाने की डोर है। नमस्कार, विद वुमेन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिनाउंड एजुकेशनिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिसेस निर्मल महाना। तो चलिए आज इनकी कहानी सुनेंगे इनकी जुबानी। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। Thank you so very much, and I'm also delighted to meet you after quite some time, and thank you for calling me in your studio. निर्मल जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपके करियर की शुरुआत। आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और कहाँ से की? मेरी करियर की शुरुआत in 1984 I finished my graduation. 1985 I finished my B.Ed and I was enrolled for post-graduation, and just for a fun I had filled the form for Central School केंद्रीय विद्यालय के teachers के लिए, TGT English के लिए, and they called me for interview. I went for the interview. I was selected on spot, and so this is how immediately after my B.Ed I was posted in Udhampur Dhar Road. That KV number 2 Dhar Road, Udhampur is started by my batch. Okay. So my journey started in 85. 1985. Yes, yes. And after that, no looking back. I worked for almost completed 38 years of my career, and before I hung up my boots, as they say in army. I worked all over India in various convents and army schools and private public schools, and had beautiful experience connecting with people, with the children, and this is how my journey has been. निर्मल जी, देखा जाता है जब कोई भी हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो कई चैलेंजेस जो होते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, वो फेस आता ही है चैलेंजेस का। तो आपको कब लगा, आपकी लाइफ में कब वो चैलेंज आया जिसको आपको लगा कि नहीं, अब मुझे इसको फेस करना था और कर लिया है, अब इस चैलेंज को जो मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहती हूँ? सी एज सच मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं तो मुझे चैलेंज तो ऐसा कोई नहीं आया, बट येस डेफिनेटली व्हेन in 1988 I got married to an army officer, and we got only 10 days leave, and within 10 days we got married. After 10 days we came back from Delhi. He joined his unit, I joined my school. After 6 months I came to know that the unit is going to go for IPKF. That time in Sri Lanka, the unit was moving. For me, the problem was my father passed away during that time. I was carrying my elder son. I was pregnant, and I was posted in Udhampur. My in-laws were in Delhi. So that was that 6 to 7 months were very harsh because you see the setback of my father's death. My husband is going for a war. Sri Lanka, you know, IPKF that time was in a terrible state, and but then I realized once my son was born, so I again came back to Udhampur. I joined the school. He was just merely 4 months old baby, and when I stayed for 10 days, then I realized कि no, I don't think so. It will be possible for me to continue my job. And Tarika, let me tell you, till now I have not given my resignation to KV. My dossier is still lying there. Okay. And but being an army officer's wife, wherever I was going, I was picking up the job. So that was I had that confidence that wherever I'll go and I'll appear for the interview, I'll pick up a job. So okay. All these places, wherever he has been, I was serving along with other responsibilities which an army officer's wife has to take up. But I was working everywhere, even Delhi also. देखा जाता है निर्मल जी, कोई भी महिला प्रोफेशन कोई भी हो, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है उस मंजिल को पाने के लिए। और साथ ही बात करें फैमिली सपोर्ट की, तो फैमिली की सपोर्ट के बिना महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में वो कौन था आपका फैमिली का मेंबर जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और जहां इस मुकाम पर आज आप पहुंची हुई हैं? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात कर रहे हो, माई एंटायर फैमिली मेम्बर्स दे वर वेरी सपोर्टिव. बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, आई वाज थॉरली पैम्पर्ड.
though this teaching profession was not meant for me because I cleared my exam, I was selected for that time DYSP, and but my father, I don't know why he was reluctant. He said, no, you will not join any belt forces, teaching profession mein jao. But he was very supportive. First time when I'm telling you that when I was posted in Udhampur, he's the one who came, who settled my house, arranging for gas stove and this thing. मेरे को चाय बनाना भी नहीं आता था. तो my sister, second number वाला sister, and my father, they supported. And of course, I mean ये कहने की बात नहीं है, my mother-in-law after my marriage and my husband. सी बाकी मेंबर्स कितना भी आपको सपोर्ट कर लें, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है जी, वो अगर सपोर्ट आपको करता है और वो आपकी वो जो आप में वो खासियतें हैं और उसे पता है, आपके ऊपर भरोसा है, वो अगर सपोर्ट करता है और आपको पूरी खुली छूट देता है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अचीव करना एक औरत के लिए मुश्किल है. आई मीन स्काई इज़ द लिमिट. आई मीन आज जो भी हूँ मैं, आपको मैंने बताया 38 इयर्स मैंने इस प्रोफेशन में दिए हैं. ऑल ओवर इंडिया मैंने काम किया है, टॉप स्कूल्स में, एंड मैंने बैलेंस करके रखा है. अगर मुझे पता है कि अगर मैंने 6:30 घर से निकलना है, आई यूज़ टू गेट अप एट 4:30. आई यूज़ टू मेक ब्रेकफास्ट, पूरा टिफ़िन में पैक करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज के लंच का अरेंज करके देन आई यूज़ टू गो टू स्कूल. एंड वापस आके आपको पता है आर्मी में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, शाम की पार्टीज भी अटेंड करनी है, घर में बच्चों का खाना भी बना के जाना है. सो दैट इज़ अप टू यू हाउ यू बैलेंस योर लाइफ. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत को भगवान ने इतना स्ट्रांग बनाया है ना, तो अगर आप दिमाग में ये चीज़ें नहीं लाने दो कि मैं थक गई हूँ, मैं ये कैसे करूँगी, अगर आप खुले दिमाग से पॉजिटिव सोच से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ जो है मुश्किल. बट येस, 24 घंटे को आपको उसको डिवाइड करके ब्रेक ले लेके नो डिवाइड करके आपको अपना काम करना पड़ेगा. कि आपने अगर जाना है नौकरी करने तो सुबह उठ के अपनी पूरी जिम्मेवारियां निभा के जानी है. आपने ये नहीं कि बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं मिला, उनका टिफिन पैक नहीं हुआ, हस्बैंड के लिए खाना नहीं है. सो वो बैलेंस करना एक औरत का काम है. और मुझे लगता है कि अगर आप अपने 24 घंटे को ठीक से डिवाइड करते हैं तो आप एक सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, और अपने लिए अपनी जो आपका पैशन है या आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको भी परस्यू कर सकते हैं. जी, 38 इयर्स की आपने अपना जो है वो टीचिंग लाइन में दिया हुआ है. काफ़ी लंबा समय होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड. कैसा लग रहा है आपको? अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए. एक तो मैंने जो मेन चीज़ थी वो मैंने बताई कि एंड स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, कि अब आप ये नहीं कह सकते आपने 8 बजे ऑफिस जाना है तो आप 7 सवा 7 बजे सो के उठें. यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू हैव टू हैव दैट 2.5 आवर्स. सुबह आपको आधा घंटा सुबह का सबसे पहले आपका अपने लिए होना चाहिए, टू हैव अ कप ऑफ टी, आराम से दिमाग को शांत करके और पूरा मैनेज करके. एंड रात को सोने से पहले आप सब्जियां काट दीजिए, आप आटा गूंद दीजिए, आप जो बाकी के काम हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके लटका दीजिए एंड अपने कपड़े लटका दीजिए. तो सुबह उठ के फटाफट एक साथ 4 काम आप कर सकते हैं, तो उतनी मुश्किल होती नहीं है. और मेरा जो आप एक्सपीरियंस प्रोफेशन का पूछ रहे हैं, देखिए आजकल 2 चीज़ें हैं. समय बदलता जा रहा है और हमें भी समय के साथ बदलना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय के साथ ताल से ताल मिलाकर नहीं चलेंगे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे. हमारे टाइम में हमारी जनरेशन अलग थी, हमारे बच्चे अलग थे. अब उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो अलग हैं. ये दो टेम्परामेंट्स अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनकी सोच अलग है. तो उनकी सोच के साथ कहीं ना कहीं आपको कदम से कदम मिलाना पड़ता है. हमारे टाइम में मुझे याद पड़ता नहीं है कि हमने बाहर से रेगुलर बेसिस पे खाने आते थे. यू नो, घर में जो बनता था वही खाते थे. हमारे बच्चों ने ऑफ एंड ऑन कभी बाहर से मंगवा के पिज़्ज़ा बर्गर ये खा लिए. अब आजकल की जो पीढ़ी है, इवन मदर्स भी नहीं बनाती हैं, तो बच्चे जो हैं वो भी बाहर का ही खाते हैं. जो इतने सालों में मैंने देखा है, स्पेशली जो टिफ़िन बच्चे लाते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से, मैक्सिमम आजकल मैगी नूडल्स. अब देखिए सुबह माँ ने 6 बजे मैगी नूडल बनाया और बच्चा 12 बजे स्कूल में खा रहा है, उसकी क्या वो हालत हो जाती है. तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने 2 से ढाई घंटे सुबह के लिए रखिए, ताकि आप हर चीज़ को बैलेंस करके रख सकें. जहाँ तक खाने का है, देखिए हर चीज़ खाने से जुड़ी है. बच्चा अगर कमज़ोर आपका रह जाएगा, ना उसको पढ़ाई में मन लगेगा, ना वो खेल कूद में कुछ आगे बढ़ पाएगा.
तो उसके पहले तो उसकी बैलेंस डाइट होनी बड़ी ज़रूरी है। और ये मदर्स को जो वर्किंग है वो भी, जो घर में रहती हैं वो भी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस उम्र में, ग्रोइंग एज में, जब बच्चों की बहुत सारी ग्रोथ हो रही होती है, उनके खाने का बड़ा ध्यान रखें आप। जो स्कूल में जा रहा है और खाली पेट एक कप दूध पिला के आप भेज देती हैं, बच्चा आते ही मॉर्निंग असेंबली में वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक सैंडविच या 2-3 बिस्किट्स या वो खिलाएं, उसके बाद कुछ लिक्विड उनको पिलाएं। और दूसरा, जहाँ तक बच्चे स्कूल आते हैं, आते ही बैग पटका, फटाफट से मुंह धोया, खाना खाया और उसके बाद दोबारा बैग लगा दिया और उनको ट्यूशन्स के लिए भेज दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नर्सरी या केजी या क्लास 5 तक के भी बच्चे को ट्यूशन्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ट्यूशन्स वाले भी क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? होमवर्क करा देते हैं। तो अगर अपने बच्चे को आप शुरू से आदत डालें अपने आप से पढ़ने की, और स्कूल में भी टीचर्स अगर डेडिकेटेड हैं तो वो थोड़ा सा हेल्प अगर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत छोटे बच्चों को जाने की ज़रूरत है। मदर्स आजकल क्या कर रही हैं, एंड सॉरी मैं आपके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बोल रही हैं, एंड आई डोंट वांट एनीबडी शुड टेक दिस ऑफेंस, लेकिन अपने टीवी देखने के चक्कर में, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करें। जितना समय हो सकता है अपने बच्चे के साथ दे दें, क्योंकि एक बार जब बच्चा 12th के बाद घर से निकल जाएगा ना, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर जॉब के लिए, फिर शादी हो जाती है, वैसे ही चले जाते हैं, आप ये समय मिस करेंगे। तो जितना समय आप अपने बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ बच्चे को यही बोलिए कि जो होमवर्क मिला चलो करो, राइटिंग उसकी देखें, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी बड़ी क्लासेस में वो उनके अपनी तरीके की दुविधाएं हैं, बट अगर आप क्लास 5th तक बच्चे को अपने आप से पढ़ने की अगर आदत बना देंगे ना, तो बाद में भी बच्चे को ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमने ट्यूशन से बगैर IAS बच्चे पास कर रहे हैं, है ना, IPS पास कर रहे हैं, IITs में जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ट्यूशन्स नहीं है। आदत डालिए उन बच्चों को ऐसा करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक माँ को अपने बच्चे को समय दीजिए, बैठिए उसके साथ, पूछिए उसने सारे दिन क्या किया, स्कूल में, रास्ते में किससे बातचीत हुई, फ्रेंड्स ने क्या बोला। कनेक्ट जो है बच्चे के साथ, वो बड़ा ज़रूरी है। एज अ प्रोफेशनल मैं बता रही हूँ आपको, जब आपको रात को लेटते हैं ना, अपने बच्चे को थोड़ी देर हग करिए, लिटाइए अपने साथ, पूछिए उससे कि क्या चाहता है, वो क्या किया, अगले दिन क्या करने वाला है। तो बच्चा जो है वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, नंबर 1, और कोई चीज़ छुपाएगा नहीं आपसे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आप आर्मी ऑफिसर की अगर बोलें बेटी, उसके बाद वाइफ और अब माँ, तो आर्मी ऑफिसर की मतलब शुरू से ही, मतलब बचपन से लेकर अब तक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ रही है मेरी, क्योंकि एक सेट समय पे सुबह उठना है, सेट समय पे खाना है, सेट तरीके से टेबल लगना है, सेट तरीके से आप खाने का एक तरीका है, पहनने का, बोलचाल का, लोगों से मिलने का, लोगों से कनेक्ट करने का एक अपना एक सेट तरीका है। तो वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है ना फौजियों की, वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं बेटी थी तब तो मैं वैसे ही बिजी थी, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 5 नेशनल्स खेले और J&K स्टेट मैंने 5 गेम्स में रिप्रेजेंट करी है, डिफरेंट गेम्स में। आई हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट इन NCC ट्वाइस, इन रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी की, और प्री एशियाड में मैं गई हूँ। मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपने टाइम में। एजुकेशन के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रही हूँ, डिबेट्स में, प्लेज में। तो एक सिर्फ पेंटिंग रह गया था वो शादी के बाद, एंड वो मैंने परस्यू किया। और अगर आप मेरे घर में आएंगे तो जितनी पेंटिंग्स लगी हैं वो मैंने की हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ जो है ना एक फ़ौजी के घर की, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है। अब बात करते हैं, जिस तरह से आप 38 इयर्स आपने टीचिंग लाइन में दिए, और उसके अलावा बात करेंगे आपने पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखा, तो आपको कब ऐसा लगा, आपको कब सूझा कि नहीं अब मुझे पॉलिटिक्स में भी कदम रखना चाहिए? पॉलिटिक्स में कदम रखने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं दिल्ली मैंने 2-3 बार जब मैं गई हूँ प्रिंसिपल्स फोरम में, एजुकेटर्स कॉन्क्लेव के लिए, एंड मेरी मुलाकात मनीष सिसोदिया जी से हुई, जो उस समय दिल्ली गवर्नमेंट में थे एंड एजुकेशन मिनिस्टर थे।
उनको सुनने के बाद उनका जो विचारधारा थी और वो जो काम दिल्ली के लिए कर रहे थे, स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए स्पेशली, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। बट जैसे मैंने आपको बताया, एक फौजी बैकग्राउंड से होने के नाते किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके हम विश्वास नहीं करते हैं जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू दैट माई इन-लॉज आर फ्रॉम दिल्ली, माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम दिल्ली, एंड एक दो बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में विजिट करने का मुझे मौका मिला, डिफरेंट अलग अलग उसकी वजह से। एंड जो उन्होंने वहाँ पे स्कूलों की हालत में सुधार लाया, एजुकेशन में भी लाया, बिल्डिंग्स में भी लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसकी मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, यही मेरा था। और मुझे सबसे बड़े जो मेरे दिमाग में था कि जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के लिए और सिस्टम के लिए और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है उसमें सुधार लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी वहाँ दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रही है, जो वहाँ अच्छा कर रही है तो वो यहाँ पे भी करेगी। बट अभी वेट कर रहे हैं हम। आई थिंक द पार्टी हैज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, एंड अभी बहुत जल्दी ही हमारा संगठन भी तैयार होने वाला है दोबारा। तो लेट्स सी कि हम लोगों की एक्सपर्टीज़ जितनी भी हैं, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो दैट वाज अ रीज़न। इन एनी केस, अगर पार्टी का हो या नहीं हो, पर मैं अदरवाइज ऑन माय ओन मैं सोशल वर्क काफ़ी कर रही हूँ। और उसके माध्यम से काफ़ी सारे 4-5 स्कूल हैं जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ मैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में हूँ, जाती हूँ, मिलती हूँ पेरेंट्स से, उनके साथ स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं उनके वोकेशनल, उनकी ट्रेनिंग्स, उनका स्किल प्रोग्राम्स, एंड उनको आगे कैरियर ऑप्शंस के लिए उनके सब्जेक्ट ऑप्शंस क्या होते हैं वो मैं समय समय पर करते रहती हूँ। जी, आपकी राय में शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए और क्या क्या उचित कदम जो है, कोई ठोस कदम और उठाने चाहिए? देखिए, शिक्षा इतना वास्ट एरिया है ना कि इसमें बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं। एजुकेशन तो है ही है। अब एक चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई थी, उसका मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी गई जो ज़रूरी था हमारी उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि हमारे टीचर्स वैसे ट्रेंड नहीं हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ट्रेंड नहीं है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सारे बच्चों को मैकेनिक बना दो, या आप उनको सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बना दो। जो बच्चे जिनमें कैलिबर है, जो साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, ये उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैं इंटरनेशनल फोरम में भी बात करती रहती हूं, मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जेल फोरम की मैं कंट्री हेड हूं, और वहाँ जब अभी पीछे ही ब्राज़ील के बच्चों के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वहाँ पे बच्चों का है, जिस बच्चे का अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको वही काम दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, वो 30 बच्चे, चाहे उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, पर वो जो टीचर ने आंसर लिख दिया बोर्ड पे, वो सारे कॉपी में लिखो, घर जाओ, क्रैम करो और आके एग्जाम में दे दो। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। अब मैं प्रैक्टिकल की भी अगर बात करूँ तो स्कूल्स क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। अब समर ब्रेक्स में दीदियों के बच्चे, आगे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं उनके, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या मिला है, तो प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो टीचर की देखरेख में क्लास के अंदर होने चाहिए, लेकिन वो दे दिए जाते हैं कि आप घर से बना के ले जाओ। अब घर में कोई नहीं बनाता क्योंकि उतनी सपोर्ट नहीं है। तो आजकल मार्केट खुली हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि ये एंगल और ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल और कैसे बन गया, उसको कैसे जोड़ा, उसमें कितने वो हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा है। एंड वो फोटोग्राफ हम खींचते हैं चीज़ों की और अपलोड कर देते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो। सो बच्चे को नॉलेज तो नहीं मिल रही ना। तो मेरा कहना है, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है सारे स्टाफ से, जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं,
प्राइवेट स्कूलों में फिर भी अच्छा काम हो रहा है बिकॉज मॉनिटरिंग होती है, पर मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी कोई मॉनिटरिंग होती है। बट मॉनिटर होना चाहिए ये सारा काम कि बच्चों को जो आप प्रोजेक्ट देते हैं वो जो है टीचर की देखरेख में क्लास में करें। आप एक हफ्ता ले लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाने में, डजंट मैटर, आपको पूरा सिलेबस खत्म करने की जरूरत क्या है। आप वही चीज पढ़ाएं जो बच्चे के बाद में काम आनी है। सिर्फ उसको पास करने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, वो पास करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। अब बात करेंगे अब आखिर में व्यूमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, आपकी राय में आपको क्या लगता है व्यूमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एड ऑन होनी चाहिए? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो अभी समय के बदलने के साथ साथ वुमेन तो बहुत एम्पावर हो गई हैं। वो बात अलग है कि जो वुमेन है ना एम्पावर तो हो जाती हैं बट अपनी पावर का फिर मिसयूज भी करने लग जाती हैं। सो वो आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या जो हमारे को एम्पावरमेंट मिल रही है, क्या हम वो सोसाइटी को की रिफाइनमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपने आप के लिए अपने आप को एम्पावर करके खाली अपने परिवार को ही हम उसका फ़ायदा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, ये देश हमें इतना कुछ दे रहा है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को जो डाउन ट्रोडन बच्चे हैं, जो बिल्कुल लो स्ट्राटा के बच्चे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से आप एम्पावर करें, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। मैं आपको बताऊं 2015 में जब मैंने डीपीएस कठुआ टेक ओवर किया एज प्रिंसिपल, और उस समय डीसी होते थे रमेश जी, बाद में रमेश चंद्र जी जो बाद में डिविजनल कमिश्नर थे या कमिश्नर सेक्रेटरी या कुछ हैं, तो हम दोनों ने मिल के वी अडॉप्टेड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में जे&के में। डीपीएस कठुआ वाज द फर्स्ट स्कूल हु इन माय दिस थिंग जो इनिशिएट हमने किया था। हमने 2 बच्चियां नारी निकेतन से अडॉप्ट करनी थी, फिर हमने उन्हें पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, फीस भी, किताबें भी, सब सारा कुछ हमने दिया अंडर हिज दिस थिंग। एंड फॉर दैट आई वाज अप्रिशिएटेड बाय मेनका गांधी जी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट। उन्होंने मुझे लेटर भी लिखा है अप्रिसिएशन का एंड दिस थिंग। तो यू नो ऐसे कंट्रीब्यूट करिए आप सोसाइटी की तरफ, एंड आप अगर एम्पावर हैं तो आप अपने साथ, जब तक आप 10 लेडीज़ को और एम्पावर नहीं करते हैं तब तक एम्पावरमेंट का कोई मायने नहीं रखता है। सोसाइटी को पे बैक टू द सोसाइटी। महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? महिलाओं के लिए मैसेज सबसे बड़ा ये रहेगा कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से आप जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी लाइफ को अगर आप बैलेंस करके जिएंगे, अपने परिवार को, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, सबको बैलेंस करके, अपने बच्चों को, उनकी जिम्मेवारियां बैलेंस करके रखेंगे और उसके साथ साथ अपने आप के लिए भी टाइम निकालेंगे, तो आई थिंक लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आप हर लम्हा जो है एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सेल्फिश मत होइए, अपने पूरे परिवार को उनका ध्यान रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद होना घरों में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल महाना जी, आज आपने अपना कीमती समय द न्यूज़ नाउ को दिया। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी। तो आपको बता दें कि आज थी हमारे साथ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिसेस निर्मल महाना जी, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई अपनी ज़ुबानी। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।